ظہور لولابی تہندس خدمت مز حاضر تو پیش خبرن تفصیل شروعات بج تو اہم خبرن سے گھرکلی معاملن ہند وزیر امت شاہ سپدن آج جموں کشیر ہندس دورس پہ روان ات سلسلس اندر جمس اندر تیارین حتمی شکل دن آمز بی جے پی پارٹی دفترس پہ یہ تیاری زور شور سان جاری تاہم معلوم سپودمت آج شامن 6 بجے واتن گھرکلی معاملن ہند وزیر جوم یہ تم اندرونی سلامتی متعلق اجلاس صدارت کرن ات اجلاس اندر آسن لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا انتظامیہ تو پولیس بہل پائک افسر تو انٹیلیجنس ادارن ہند سربراہ موجود یہ کت بیان لائق پتمو کینسو دہو پہ سامبا کٹھوا ادھمپور ڈوڈا بدروا راجوری پونچھ سرخین اندر تیز علاقن اندر ملٹنٹن ہز موجودگی پتہ بڑس پیمانس پہ آپریشن جاری گھرکلی معاملن ہند ماہرن ہند ون یہ گۄڈنِچ لٹہِ ییٚلہِ یونیفائڈ کمانڈ میٹنگ مز وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ تہ شرکت کرن یپٲرۍ شہر سرینگرس اندر تہ داخلہ وزیر سندس دورس حوالہ سیکورٹی سخت کرنا آمز تو سرینگر دورس دوران کرن داخلہ وزیر شہید ڈی ایس پی ہمایون سند گرکن ست ملاقات تم کرن تمن ست یکجہتی ہند اظہار یپٲرۍ داخلہ وزیر سندس دورس حوالہ جمس اندر تہ سیکورٹی ہند خاص انتظامات کرنا آمد بھارتیہ جنتا پارٹی ہند جموں کشیر یونٹک صدر ست شرما سند طرف تہ ون آمت داخلہ وزیر واتن آج جوم یہ تم جموں کشیر ہندس سیکورٹی صورتحال سامہن تمو ون ات دوران یہ موجود صورتحال جائزہ ہن تت کرن داخلہ وزیر بی جے پی ایم ایل این ست ملاقات ایسا ہے کہ کافی سمے پورو جب بھارتی جنتا پارٹی کے ہمارے 29 ودھائک بنے تھے چنے گئے تھے ہم نے ماننیہ ہوم منسٹر صاحب سے سمے مانگا تھا 3 दिवसीय دورے کے اوپر 6, 7, 8 کو وہ یہاں رہنے والے ہیں سرکشا کارنوں کے کارن یہاں کی سرکشا استھتی کو جانچنے کے لیے ایل جی صاحب کے ساتھ ان کا بیٹھنا کچھ مارٹیئرز کے ساتھ ان کا پریواروں کے ساتھ ان کا بیٹھنا اور بی ایس ایف کے ساتھ بیٹھنا انڈین آرمی کے ساتھ کچھ آفیسرز کے ساتھ ان کی بیٹھکیں رہنے والی ہیں ہم نے سمے مانگا تھا اس میں سے سمے آج ہمیں ملا ہے ہم لوگ پارٹی کے پرمکھ نیتا ماننی ودھائکوں کے ساتھ اس بیٹھک میں حصہ لیں گے اور یہ بیٹھک ایک میرا ایک ماننا ہے کہ چننے کے بعد سبھی ودھائکوں کی اچھا تھی راشٹریہ ادھیکش جی کے ساتھ ان کا بیٹھنا ہو گیا تھا ماننیہ ہوم منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھنا ان کا ہو جائے اسی کو لے کر جو ہے آج بیٹھک مجھے دھیان نہیں ہے لیکن چونکہ کچھ ایسے کارکرم بھی ہیں جن کا شبھارمبھ ہونے والا ہے اس میں ڈیفینیٹلی ماننیہ سی ایم صاحب بھی رہیں گے اس میں کوئی دو رائے نہیں پارٹی کا یہ وشے ہے اس میں ماننیہ نڈا جی پارٹی کے پرمکھ نیتا دیکھتے ہیں پارلیمنٹری بورڈ کے سدسیہ ہونے کے ناطے جب ان کے پاس یہ بات آئے گی اس وقت ہی کوئی بات ہوگی آج یہ کوئی چرچا کا وشے نہیں ہے میں نے کہا سرکشا کی جانکاری لینے ہیتو ماننیہ ہوم منسٹر صاحب ہیں لگاتار سے یہاں کی ٹیموں کا وہاں جانا ہوتا ہے یہاں کی ٹیموں کا وہاں آنا ہوتا ہے میرا ماننا ہے کہ اس سرکشا کارنوں سے ہی یہاں کی ان کی 3 دن کا جموں کشیر مز ریزرویشن معاملس پہ حکومت طرف بنانے آمد سب کمیٹی طرف آواز ایس کے آئی سی سی سرینگرس مز مختلف وفدن ست ملاقات کرنے یا دوران میڈیکل سائنس اوپن میرٹ نمائندن ست تو دویمو نمائندو تہ شرکت کر کمیٹی برہ کن پن خدشات ظاہر کر میٹنگ آئی کابینہ وزیر سکینہ یتو سند صدارتس مز منعقد کرنے یتھ مز کابینہ وزیر ستیش شرما تو جاوید رانا سند طرف تہ شرکت کرنا آئی میٹنگ ان واتنا پتہ سکینہ یتو سند طرف یقین دہانی کرنا آمد کمیٹی کر 6 رتن اندر اندر رپورٹ حکومتس برہ کن پیش یت لکن ہند خدشات دور کرنے ین آج سب کمیٹی کی کئی میٹنگز پہلے ہوئی ہیں جو سب کمیٹی آنریبل چیف منسٹر صاحب نے ریگارڈنگ ریزرویشن بنائی ہے اس سب کمیٹی میں آنریبل جاوید صاحب ہیں منسٹر جو میرے ساتھی ہیں ستیش جی ہیں جو میرے دوسرے ساتھی ہیں آنریبل منسٹر ہم 3 ہیں سب کمیٹی میں اور سب کمیٹی نے پہلا بھی جو ہے کئی بار میٹنگز ہوئی ہیں سب کمیٹی اپنا کام جو ہے ریزرویشن کے اوپر کر رہے ہیں آج یہاں ایک میٹنگ بلائی تھی جس میں کچھ ڈپٹیشن آئے ان سے ملے ان کی بات سنی ان کے پریزنٹیشن جو ہے وہ لی ہے ان کو ایگزامن کیا جا رہا ہے سب کمیٹی انشاءاللہ اپنا رپورٹ جو ہے ودن 6 months جو ہے وہ سبمٹ کرے گی میم جو ایفیڈیوٹ سبمٹ کرایا گیا تھا سرکار کمیٹڈ ہیں آنریبل چیف منسٹر صاحب نے سب کمیٹی بنائی 6 مہینے میں رپورٹ آئے گی اور جو یہ چیزیں کر رہے ہیں جہاں جو کسی چیز کے بارے میں سرکار کو کرٹیسزم کر رہے ہیں سرکار کو
वो लोग खुद सिंसियर नहीं हैं, उन्होंने खुद कुछ नहीं किया है, लेकिन सरकार करना चाहती है। इंशाल्लाह सरकार इस पे काम कर रही है। मैंने पहले भी कहा है कि अगर कहीं पे भी सरकार को एफिडेविट देना पड़ेगा रिगार्डिंग रिजर्वेशन के, कहीं पे जो है सरकार इसको देख रही है, सरकार ये सबमिट करेगी विद इन 6 मंथ्स जो है अपना रिपोर्ट देगी। जो आज मुखालिफ इसको उबारना चाहते हैं, इसका पॉलिटिकल फ़ायदा लेना चाहते हैं, 6 महीने के बाद वो खुद उनको पता चल जाएगी कि सरकार सिंसियर थी या नहीं थी। शुक्रिया। वो क्लैरिफिकेशन नहीं आ एफिडेविट का उनको बहाना है, एफिडेविट जिसने भी जमा किया है वहाँ पे कोर्ट में वो गलत तरीके से दिया गया। मैंने फिर यही कहती हूँ मैं कि अगर गवर्नमेंट को सब कमेटी को एफिडेविट देना पड़ेगा रिजर्वेशन के बारे में, वो ज़रूर देगी जहाँ भी ज़रूरत होगी। सरकार सिंसियर है, हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह, और सीरियसली काम कर रहे हैं। 6 महीने तक थोड़ा सा इंतज़ार करिए, और उनको भी बोलिए जो ये जिन्होंने सवाल दिया था फिर असेंबली में एब्सेंट रहे, एनलिस्ट हुआ भी सवाल, लेकिन वो आके उन्होंने वहाँ पे कोई जवाब नहीं पूछा सरकार से। अब वो बाहर ड्रामा कर रहे हैं, वो ड्रामा ज़्यादा। मीटिंग में शामिल नुमाइंदों तरफ तश उम्मीद ज़ाहिर करान वोनमुत ज़े तिहंद खदशात यन दूर करने तो तिमन यी इंसाफ फराहम करने। I am from Open Merit Student Association. We just had a detailed meeting with the honorable members of the subcommittee, and they gave us the assurance that the reservation issue will be resolved within a period of 6 months, as they have already promised. And उन्होंने जो हमने इशू उठाया, ये कल का जो एफिडेविट वाला मसला, हमने उस चीज़ को उठाया। They said कि चलो let's not get into the details who has submitted it and not. If the need arises, we will replace that. We will file the fresh affidavit, and आप भरोसा रख लीजिए that we are committed. We are going to resolve this issue. In fact, she gave us the guarantee. बोला 1.5 month बचा है. Just have patience. अगर नहीं होता है आप हमारे पास फिर से आ जाइए. And she is on record saying it. In fact, other members they were also cooperative. They said कि आप लोगों के साथ गलत हुआ है. They accepted it. आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादती हुई है. We have gone through the data and we are committed that we will resolve this issue. मेडिकल कॉलेज हमारी अप्रेंशंस रिगार्डिंग जो नीट के एग्ज़ाम होते हैं हमारे पास, नीट यूजी और नीट पीजी जो थी, उनके रिगार्डिंग हमने अपनी सजेशंस पेश की। तो बेसिकली जैसे कि आपको पता है, लास्ट ईयर इन द नीट पीजी ओनली 27.8% सिर्फ ओपन मेरिट से सिलेक्शन हुई थी। तो हमने पूरे फैक्चुअल डाटा इन्हें दी, और क्यों इम्पॉर्टेंट है मिनिमम रिजर्वेशन इन पर्टिकुलरली मेडिकल फील्ड में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उस इंसान के हुकूक की बात नहीं हो रही है जिसको आप रिजर्वेशन देते हैं, यहाँ पर दूसरे इंसान के हुकूक की बात हो रही है जो आपके पास आता है, जो आपके पास इलाज के लिए आता है। तो इस बारे में हमने एक एप्रेंसिव हमने डाटा कलेक्ट किया था, फैक्ट्स कलेक्ट किए थे, तो वो हमने इनको डाटा पेश किए और इन्हें यकीन दिलाई कि जो चाहे रूल 17 हो, जो ड्रैकोनियन रूल 17 है जो हमने बार बार बात की है, और SRO 49 हो, उसको रिम्प्लीमेंट किया जाए। तो इन्हें यकीन दिलाई की कि अब तो 6 मंथ को अराउंड सिर्फ एक ही मंथ बचा है, तो इन्हें यकीन दिलाई दी कि दिस विल बी रेक्टिफाइड। डॉक्टर तौसीफ फ्रॉम सिकम्स। तो हमने हमारा एक अलग डेलीगेशन थी मेडिकल साइड से, तो हमने अपने जो पॉइंट्स थे हमारे वही हमने कमेटी के सामने रखे। हमारे जो पहले से हमारी डिमांड जो थी वो ये है कि हमारा SRO 49 जो है उसमें ओपन मेरिट को जो मेडिकल प्रोफेशनल कोर्स हैं, PG कोर्स हैं, उसमें ऑलरेडी वो SRO 49 बैक इन 2019 तक ये ऑलरेडी था इन प्लेस। तो उसमें 75% ओपन मेरिट को था और वो हमने कमेटी के सामने रखा। और रूल 17 जो कि एक ग्रॉस हम कहेंगे एक ड्रैकोनियन लॉ है, जिसकी वजह से बहुत सारा हमें फेस करना पड़ रहा है, चाहे नीट UG हो या नीट PG हो। एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दीज थिंग्स अप्लाई ओनली टू द नीट UG एंड नीट PG एंड ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर, नोवेयर एल्स इन होल इंडिया। तो उसकी वजह से अगर हम देखेंगे GMC उधमपुर जो है उसमें नन ऑफ द स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 इज़ फ्रॉम ओपन मेरिट कैटेगरी, एंड इन GMC डोडा only 1 student from out of 100 is from open category, and GMC हंदवारा में 3 students हैं जो open category से out of 100. So this is gross, I mean injustice that is happening with the open merit students. So हम ये चीज़ हमने रखी मेडिकल सेक्टर से पर्टिकुलर हम कहेंगे, ये चीज़ें हमने कमेटी के सामने रखी एंड दे assured us कि they will look into it. So जिस तरह से आपने अपनी बात रखी, वहाँ जो डिस्कशन हुआ जो कि 6 महीने का वक्त दिया गया है, आप क्या एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, और जो वहाँ पे मिनिस्टर की तरफ से बात रखी वो क्या थी जो उन्होंने बिल्कुल उन्होंने भी इसी पे जोर दिया कि उनको जो 6 मंथ्स का टाइम मिला है, एंड उन्होंने हमें एक अश्योरेंस दी कि वो हम उसी 6 मंथ्स के अंदर ही हम जो उन्होंने किया होगा ये सॉर्ट आउट, तो उन्हीं 6 मंथ्स के
श्रीनगरस मज ई बस ड्राइवरन हंस मनमानी हवाल प्रश्न आमत सवाल जवाब दिवान काबीना वजीर सकीना यतू सिंह तरफ वन आमुत जो यदवै कह ते ई बस वोल ड्राइवर खिलाफ वर्जी मज मुलवस लबना आव तस खिलाफ ही सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न कर रहे हैं। आप बताइए कुछ एग्जाम्पल अगर आपके पास है वो दे दीजिए। पे 2 रोज से लगातार वीडियो वायरल है, वो दे दीजिए, मुझे दे दीजिए, मैं देखती हूँ। कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? बिल्कुल होगी कार्रवाई। हमने ये फैसला लिया है बहनों को फायदा देने के लिए और वो इसका फायदा उठा रहे हैं इंशाल्लाह। कर रहे हैं आप रामनवमी हुन त्यौहार ये दुरुस्त मुल्क सान जम्मू कश्मीर मज ते अकीदत एहतराम तो मजहबी जोश जज्ब सान मनाने यवान तत सपज इमवाल आज श्रीनगर लाल चौकस अंदर शोभा यात्रा आई कड़ने यथ मज अकीदत मंदन हिंद खास तदाद शिरकत कर अत मौके पे भजन तो पूजा पाठों का एहतमाम करना आव तो मुख्तलिफ खन चीज़न हूं खसूसी इंतजाम करना आमुद अत मौके पे जिम्मेदारों तरफ वन आमुद तम यात्रा प्रथ वरी कड़ान युथ भाईचारस मजीद लोल बरने यी लोग आइए और वेलकम कीजिए राम जी का और आशीर्वाद लीजिए और उनके यम नियमों पर चलिए। ये कहेंगे, ये सबके लिए मैसेज है। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की शरण में जाइए। जिस भगवान से प्यार है और भगवान से प्यार करना सीखिए। तो जब हम भगवान के विपरीत चलेंगे तो तब हमें कोई रास्ता दिखेगा नहीं। जब हम भगवान के रास्ते पर चलेंगे, जैसे भगवान ने बताया है, जैसे उन्होंने अपने ग्रंथ वगैरह दिए हैं, यम नियम दिए हैं, तो सारा कुछ उसमें जब हम उस चीज़ में मतलब मसरूफ़ हो जाएंगे तो फालतू का हमारे पास टाइम नहीं बचेगा और सुख शांति हो जाएगी। जी ने जो बताया, क्या वही भाईचारा, प्यार, मोहब्बत यहाँ पर आपको कश्मीर घाटी में भी दिखाई दे रहा है, जिसमें लोकल सपोर्ट है? हाँ, देखो जी, प्रभु श्री राम जी जो हैं वो विश्व के राम हैं। जो जैसे हम दरगाह में जाते हैं, जब पैगंबर किसी को मानते हैं, जैसे बड़ी बड़ी ज़ियारतें हैं इधर, तो हमारा ये मिलजुल कर हम एक कम्युनिटी का कोई कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम इंसान हैं। हमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको जब तब तक हमारा गुलदस्ता चलेगा तब तक हम मिलजुल के चलता और चल रहे हैं। और आज रामनवमी का बहुत बड़ा त्यौहार है। हमारी 9 देवियों की पूजा हुई 9 दिन, और हमने फास्ट रखे। पहले रोज़े चल रहे थे, और रोज़े और ये जो हमारे नवरात्रे आपस में मिलकर ये आए हैं, ये ऊपर वाले की है देन है और हम पर मेहरबानी है, क्योंकि कश्मीर में हालात ठीक हैं और जहाँ की इंतज़ामिया अच्छी है, गवर्नमेंट लोगों की चुनी हुई आई है और हमें पूरा ताबन दे रही है एडमिनिस्ट्रेशन, और मीडिया भी हमारे साथ है, और हमारे जो मंदिर हैं सजे हुए हैं। और हम यही प्रार्थना करेंगे अपनी रियासत के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, कि हम मिलजुल कर रहे हैं और जहाँ की जो परंपरा है, जहाँ का गुलदस्ता आबाद रहे। तो आज हमारी जोवा यात्रा जाएगी जहाँ से होते हुए राम मंदिर की तरफ हब्बा कदल, और वहाँ हम लाल चौक की तरफ जाएंगे, फिर जहाँ दोबारा आएंगे। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सुबह से ही हमें जो लोग हैं वो जैसे इस्लामिक स्कॉलर मौलवी मीरवाइज उमर फारूक, उन्होंने सुबह ही मुझे मुबारक दी है, तो एक्स चीफ मिनिस्टर फारूदुल्ला ने भी दी है। तो जितने भी जहाँ के लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग जो हैं, जहाँ के सियासी लोग हैं, जहाँ के जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, तो उनकी वजह से हम मिलजुल कर ये त्यौहार मनाते हैं। कृष्णा नमा ओम विष्णु पदाय कृष्णा पिष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेंद्र स्वामी इति नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज जो है रामनवमी का शुभ अवसर है, राम जी का प्राकट्य दिवस है। उस अवसर पर हम शोभा यात्रा निकालते हैं। हम 2007 से कर रहे हैं। 2007 से हम कर रहे हैं। ये राम जी का प्राकट्य दिवस है कि आज राम जी जो है आनंद देने वाले हैं, सबका भला करे, सब पर कृपा करे। जो आज संदेश सब पर कृपा करे भगवान। आज भगवान राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की झांकी निकलेगी। तो ये संदेश यही है कि भाईचारा और भगवान का सपोर्ट तो हमको शुरू से ही है। और मैं जब देख रहा हूँ कि आज लोग अभी यात्रा निकलनी, तो लोग पहले से इंतजार कर रहे हैं। भाईचारा तो बहुत अच्छा है, देखने का नजरिया अच्छा होना चाहिए। तो भाईचारा तो अच्छा है। अब 10 मुंह तो 10 बातें।
भाईचारा तो अपने नजरिए पे अपनी नजर अच्छी है तो सब अच्छा है भाईचारा। कैसे दिन मनाते हैं आज का? बहुत अच्छा, ये शोभा यात्रा निकालेंगे यहाँ से बरवर्षा से होते होते तो ये जागीर होटल से होते होते फिर वापस यहाँ आएंगे। तो ये भाईचारा अच्छा है, तो हम ये दुआ करेंगे जैसा अच्छा है वैसे ही आगे भी चलता रहे और इससे जनूबी कशीर ज़िला पुलवामा के त्राल इलाकस मं शिनार किस अकिस खौफनाक वारदात मं 12 वोर तलब इलम जाम बहक सपुदमुत वन रात के सपुद दारुल शाही हमदान बिल्डिंग मं अचानक नार जहर यम वचनी पूर अमारत पन्ने जदस मं नी वाक़ पता इदवे दारुलूमस मं ज़ेर तलीम तलब इलम बचाने कोशिश करने आए 12 वोर यासिर अहमद नाउक तलब इलम मौके पे जाम बहक सपुदमुत जन अत वारदात मं 6 तलब इलम जख्मी सपदमत यम हस्पताल अंदर जेर इलाज यप पुलिस तरफ अमवाल केस दर्ज कर मजीद तहकीकात शुरू करना आमज। अल्लाह ताला कुरान पाक में मुसीबत इंसान सह अल्लाह ताला सद तरफ बहरहाल रात सज दोन बाई गो अस्तान माइक पे ऐलान कि शाह हमदान दारुल हसा एट बुलैस अत हेतु नार सारी लुक नेरियो सा। बहरहाल तमाम लुक द्राय गर जवान द्राय मर्द हजरात द्राय मस्तूरात द्राय यम वात योर चूँकि शाले नारिक वारिया थद नारन दित ब्रोट पकन कह असनास मज आव फायर ब्रिगेड तमो कर जबरदस्त अनथक कोशिश चूँकि योतन हेकान गाड़ वात कह हते पे कर तमो आसान कल पे पाइप शुरू बे बन कल पे दोनों तरफ आज पाइप चलान तमो नाग कर कंट्रोल बुत वोतुस तमे साथ योर तो बच्चे जन तम सूझमत ईद हज छुट्टी मनाने खातर चूँकि तिमन रात यून योर 34 बच्चे स्कूल दारुल उलूमस मज तो बे स्टाफ अत 17 बच्चों रात कोर्मुत ज्वाइन तो 17 बच्चे नमित वन कह तम यहान आज या पगह ईद मामला तो ये मे कोर एनक्वायर अतन तो दोप ना बच्चे ये मगर बच ना नून क्या तो अतन वन ना सह जरा दरवाज कहीं सारी रूद अथ सी तो बहरहाल कम तान दोप ना 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 तमिस मामतुर बोय तम दोप ना सह कमरस मज ये तथ नार गो थोड़ा कंट्रोल सह तथी पत्थर तो तमिस डेथ सान खतर वारिया अनफॉर्चुनेट यह मुसीबत अल्लाह ताला सह आत्मा सानियास मज शहीद तो अल्लाह ताला करें तहदन तमिस लवाहकीन से तिमन करें सबरी जमील अता बे करन अल्लाह ताला मुबादल अता श्रीनगर वनकन हस्पताल तिहद हालत मुस्तकम तिक तमन वट दिन जंग लोगमुत माइनर इंजरीज तो बहरहाल तिमन कोर सिटी स्कैन तिमन इलाज चलान जिला मज बाकी लड़के ती नी यह तमनी हस्पताल अत जनाब एस एच ओ सब त्राल ऑन स्पॉट वोतमुत तमे साथ मे पन टीम है तमो कर तमाम फॉर्मेलिटीज पूरे एडमिनिस्ट्रेशन मसला 11:15 बजे यहाँ से आग जाहिर हो गई। आनन फानन वो सब इस सब बिल्डिंग को पकड़ लिया तो उसमें बच्चे भी थे, कुदरती सामान वामान की बात नहीं मगर बच्चे थे। एक बच्चा कामयाब नहीं हुआ उतरने में, उसने छलांग नहीं मारी, वो बच्चा छोटा था, उसने बिल्कुल कोशिश की उसने मगर वो नीचे नहीं आ सका। तो यही वजह है। तो ये सब बनेगा इंशाल्लाह, सब बनेगा, बनता है मगर एक जान तो ज़ाया हो गया तो हमको बहुत मुश्किल पड़ गया। बदकिस्मती से जो असासा, दूसरी बात है जो जिसमें असासा था, एक तो कंप्यूटर सिस्टम था और दूसरा मसला था लाइब्रेरी थी। इधर लाइब्रेरी थी, बहुत सी किताबें थी, ज़ख़ीम किताबें थी, अच्छी किताबें लाई थी हमने, वो भी नजर आतिश हो गई। फायर सर्विस आ गई, पुलिस डिपार्टमेंट भी की कुछ थे इधर मगर उन्होंने बहुत कोशिश की मगर ये रास्ते से ज़रा हट कर था तो इसलिए गाड़ी नहीं आ सकी, इसमें टाइम लग गया तब तक। जम्मू कश्मीर टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन तरफ आवाज ढलना वर्मुलिस मज टीचर्स कॉन्फ्रेंस हूँ संज करने या दौरान वस्तादन दरपेश मुख्तलिफ मसलन पर कत बात करना आई। अत मौके पे आव स्कूल मज किताबन हज किल्लत, सिलेबस मज माज जव पे जोर दिनस अलाव वस्तादन हज कमी पे कथन दल दिन ये जन इंचार्ज लेक्चरन हज कन्फर्मेशन ट्रांसफर पॉलिसी प्रमोशन पे कत बात करना आई। तो हुकूमत आई अपील करने यम मसैल गसन तरजीही बुनियादन पे हल करने यीन।
आज ये दिलना की इस अजीम बस्ती में आज टीचर्स जम्मू कश्मीर टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एक टीचर्स कॉन्फ्रेंस इनकाद किया गया, जिसमें एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे पूरी बहस हुई और उसको पूरा इम्प्लीमेंट करने के लिए टीचर्स से गुजारिश की गई। और दूसरे जो टीचर्स के मसाइल हैं उनमें हमें कन्फर्मेशन ऑफ लेक्चरर्स है, इंचार्ज लेक्चरर्स जो हैं, कन्फर्मेशन हेड मास्टर्स है, कन्फर्मेशन ऑफ ज़ाडियोज़ हैं, या जो हमारे जो कन्फर्मेशन ऑफ जो प्रमोशन ऑफ मास्टर ग्रेड उन तो हेड मास्टर्स हैं, उन पे भी वो गवर्नमेंट से हम मुतालबा करते हैं कि उनको भी वो जल्दी की अमल में लाए। और जो आज हमारी जो ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर है, हम उसको मुबारकबाद देते हैं। उसने वार फुटिंग बेसिस पे एजुकेशन को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रही है और आइंदा भी हमें उम्मीद रखते हैं वो इस पे बराबर काम करेगी। हमारी कुछ पेंडिंग बुक्स हैं स्कूल्स में। भारतीय जनता पार्टी तरफ आज दुरुस्त मुल्कस अंदर पार्टी हुन योम तासीस मनाने यवान। अम हवाले सपज बीजेपी हेडक्वार्टर श्रीनगरस मज एक तकरीब सांस यथ मज पशुपालन तो फिशरीज वज़ीर ममलिकत जॉर्ज कुरियन सिंद तरफ मेहमान खुसूसी तौर शिरकत करना आए। अत मौके पे वज़ीर ममलिकत सिंद तरफ वन आमुद यन पे बीजेपी पार्टी इक़्तिदारस मज आए मुल्कस अंदर सपो तरक्की हुन नव दौर शुरू। यह कत लायक 1960 मज अजकि दोहई वाजपेयी तो एल के अडवाणी सिंद तरफ बीजेपी पार्टी कायम करना आमज। 45 साल हो गया, पूरा हो गया बीजेपी का फॉर्मेशन होने के बाद 45 साल हो गया। अब तो हम तो फिफ्थ पोजीशन में है दुनिया में, जो इकोनॉमिक पोजीशन हमारा फिफ्थ पोजीशन है। ये थर्ड पोजीशन के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। पिछले 10 साल से जो इम्प्रूवमेंट हुआ इधर, तो प्रोग्रेस हुआ, इसके बारे में आप लोग जानता है। भारत में सबसे ज़्यादा कश्मीर के लोग जानता है कितना डेवलपमेंट हुआ, इसके बारे में आप जानता है। मैं तो 1980 में बीजेपी में ज्वाइन किया, इसी दिन ये अप्रैल 6 में मैं ज्वाइन किया। मैं 45 साल बीजेपी में अभी तो पूरा किया है। पूंछ सुरनकोट मज ते आवाज़ बीजेपी पार्टी तरफ योम तासीस हवाले एक तकरीबन संस करने अत मज वर्करन तो लीडरो खास तादाद शिरकत कर। अत मौके पे पूंछ जिला नायब सदर सैयद मेहताब बुखारी, मंडल सदर सुरनकोट संजय कैसर तो पार्टी हंद दोयम जिम्मेदार थे मौजूद। आज जो स्थापना दिवस जो आज हमने सुरनकोट के जितने भी कार्यकर्ता थे उन सबको यहाँ पे बुलाया और यहाँ पे आज जो फाउंडेशन डे था उसको हमने यहाँ पे सेलिब्रेट किया। इसमें अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पे आए, जितने भारतीय जनता पार्टी के थे उन सब ने यहाँ पे शमूलियत की। और मैं आज के इस दिन पे जो है प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को और JP नड्डा साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जितने भी भारत नाज़रीन कोशिश खबर नामत यत्न सयान इजाज़त दियो खुदा सवाल।